Hello students, today our topic is plotting with PyPlot, and in this lecture we are going to discuss how to draw a line chart using Python programming language. So first of all, let us revise some terms related to Python. First one is data visualization. Data visualization is basically graphical visual representation of data in terms of charts, maps, graphs, etc. And there is a library named Matplotlib, which is used to draw graphs, and there is an interface PyPlot, which is a collection of method. Interface is nothing but only the collection of methods. So PyPlot is one of the interface used to draw these types of charts. Using Matplotlib, we are able to draw 2D graphics in our Python programming language. And Matplotlib library is pre-installed with Anaconda distribution, so you don't need to install separately Matplotlib if you have already Anaconda distribution. And using Matplotlib library, you are able to draw 2D graphics. Now, line chart. Chart which displays information as a series of data points called markers connected by a straight line segment is called the line chart. As you can see on the screen, there is a line chart in which different points are there, and we join these points to each other to draw a line chart. So this is a line chart, and we can easily draw a line chart in Python programming language if we have a Matplotlib library. So we can see how we can create a line chart in Python programming language. So as you can see on the screen, there is a line chart, and the color is basically red, but the default color is blue when we draw a line chart in Python programming language using Matplotlib library. So all the whatever be the attributes or the parameter values which we can use here in line chart, we will discuss it in detail. As far as a function is concerned, there is a function named plot which is used to draw a line chart. Now, scatter chart. In scatter chart, is very much similar to the line chart, but but it is represent only data points. So data points are not connected to each other. So when we compare line chart with the scatter chart, in line chart different data points are connected to each other, but in scatter chart these data points are represented separately, and these are not connected to each other. As you can see on the screen, that different data points are represented in this diagram. Okay, so this is the basic difference between the line chart and the scatter chart. Now, the most important question, how we can draw a line chart. So there is a function named plot, and to use this function, you have to import the library Matplotlib and its interface PyPlot to your program. So first line which you have to write in a program is import matplotlib.pyplot as PL or PLT. PLT, we just give a name to this matplotlib.pyplot, and whenever you want to use a function related to matplotlib.pyplot, just give the name of this library and interface which we already give as a PLT. So just type PLT or PL dot plot. Plot is the name of the function which is used to create a line chart, and we pass the value of a and b. A and b are the value of x-axis and y-axis, value along x-axis and y-axis in the form of a list. You can easily see here. And if you want to give the name of x-axis, then there is a function x label. If you want to give the name of y-axis, there is a function named y label. So, and finally, if you want to show the output or a graph on a screen, then there is a function show. All these function are belongs to matplotlib to pyplot. So we can write is that pl.x level, pl.y level, pl.plot, and within parenthesis sign, or we give a parameter value which is a string, basically this is the name of the x-axis, y-axis, or this is the name of the x-axis and y-axis. Now there are some attribute of plot function. You can easily see here that these are the colors, line style, marker type, marker size, age, color. These are the different parameter value or argument which you can pass, and we use a plot function. So first of all, let us start one by one. Different color code. Actually, each color is represented by a different characters. For example, yellow color is represented by Y, blue color is represented by character B, red color is represented by a color R. So you can use either the full name of the color, or you can use a character that is represented by this color. So it's your choice, but always try to use the character name instead of using the full color name. Okay.
So you can easily see that these are the different colors which represent which we can use in our matplotlib library, and different characters belongs to this color are also given here. So you have a choice. You can use either a full color name or the character which belongs to that color. Okay, but write the color or character always in a single or double quotes. Next is a line style. Okay, so try to learn this table, which helps you a lot, because these all colors are also used in histogram as well as in bar chart also. So these are the different color codes. Now different line styles are also there, because when we plot a line chart, basically we have to draw a line, and these lines are basically categorized to three basic categories: solid, dashed, or dash dot or dotted. Okay, so by default it is solid, but if you want to change its style, then you can use dashed or dotted as a parameter value. So the attribute name is line style, and you can give its value solid, dash dot, or dotted. Okay, by default it is solid. So if you don't mention any line style, then by default it is solid. And then marker type. Marker type means the type of the marker which is used to represent mark, which is used to represent the marker. Okay, so you can give different types of marker, and for that purpose different marker styles are there. For example, if you use the small letter O, that is represent circle marker. If you use plus sign, then marker then marker is represented by the sign plus, and D for diamond. Okay, you can also use less than, greater than sign also. You can use star, dot, even you can use number 1 2 3, which represent try down marker, try up marker, or try left marker, and number 4 represent try right marker. Okay, so these are the different marker style, so you can use any one of them. By default it is dot. Okay, but most of the time in question, diamond type or plus type is asked, so try to use these also. And except these two different marker styles are star and plus. Now this is a small program which is basically represent a line chart. So before going to discuss this line chart in detail, actually this is a line chart which belongs to sin x and cos x. You can easily see that there are two different lines. One line represent cos x and second line represent the chart of sin x. So let's start how we can draw this line. Okay, तो स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं। इसमें ये प्रोग्राम हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ हम काम करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको भी समझने में आसानी होगी और आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके एट्रीब्यूट देखते हैं। तो एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन ओपन किया हमने यहाँ पर, और यहाँ हमने एक न्यू प्रोग्राम लिया। पहले से एक प्रोग्राम ओपन है, यहाँ पर एक नया प्रोग्राम ले लेते हैं जहाँ हम कोशिश करेंगे ड्रॉ करने की लाइन चार्ट को। ओके, so just go to the file, new file option, then you can write a program here. यहाँ प्रोग्राम आप टाइप कर लीजिए अपना, ठीक है। पहले से प्रोग्राम लिखा हुआ है तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। रन कराने से पहले सेव करना पड़ेगा प्रोग्राम को, तो एक नेम दे दीजिए। डायरेक्ट रन कराएंगे तो भी सेव करना पड़ेगा, सेव तो करना ही पड़ेगा। बिना सेव किए आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये आउटपुट है इसका, ये देखिए ये आउटपुट है इसका।
जैसा पीपीटी में दिखाई दे रहा था सेम आउटपुट है। लेकिन आज हम इस प्रोग्राम को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट आपको इस प्रोग्राम को बताऊंगा तो मे बी पॉसिबल कि आपको ये बड़ा लेंदी और टिपिकल लगे और आपको लगे कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये लगे कि लाइन चार्ट किस तरीके से ड्रॉ होता है। तो इसकी डुप्लीकेट स्लाइड बना लेते हैं और उसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, बताएंगे कि किस तरीके से लाइन चार्ट को ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, बेसिक एट्रीब्यूट्स क्या है या बेसिक, जिससे कम से कम पहले हम एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके लाइन चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और फिर उसे धीरे धीरे स्लोली हम उसमें एक एक एट्रीब्यूट को ऐड करते जाएंगे और सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड वे में हम मूव करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट लाइन जो रिक्वायर्ड है, जिसके बिना आप लाइन चार्ट ड्रॉ ही नहीं कर सकते, वो है मैटप्लोट्लिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना। लाइन चार्ट बना रहे हैं तो मैटप्लोट्लिब और पाईप्लॉट को दोनों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमें तो ये लिखना ही होगा, इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब और पाईप्लॉट एज पीएलटी। एज पीएलटी लिखना ज़रूरी नहीं है, पर यह है कि जब भी कभी आप मैटप्लोट्लिब और पाईप्लॉट लिखना पड़ेगा तो सिर्फ उसकी जगह आप पीएलटी लिखेंगे तो सफिशेंट रहेगा। नमपाई लाइब्रेरी को अगर रिक्वायर्ड है तो यूज़ करें, अदरवाइज़ छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम विदाउट नमपाई लाइब्रेरी पहले प्रोग्राम लाइन चार्ट ड्रॉ करेंगे ताकि आपको भी समझ में आए कि हो क्या रहा है यहाँ पर। लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए आपको एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग वैल्यू चाहिए होगी। तो हमने एक वेरिएबल लिया एक्स और लिस्ट की फॉर्म में 5 वैल्यू पास कर दी, 1 2 3 4 5। ठीक है, याद रखिए हमने नमपाई नहीं लिया अभी यहाँ पर, बिल्कुल प्रोग्राम को सिंपल रखते हैं। और वाई एक्सिस के अलोंग भी वैल्यू लेते हैं लिस्ट की फॉर्म में। तो वेरिएबल के नेम में लिया y1। ठीक है, पहले एन पी कॉस एक्स था, अब चूंकि नमपाई को हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो क्या ज़रूरत है लेने की। वेरिएबल का नेम भी वाई रखते हैं, वाई वन की जगह, सिंपल रहेगा। तो ये वाई एक्सिस की अलोंग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लिस्ट की फॉर्म में हमने वैल्यू को लिया। हमने एक्चुअली यहाँ पर स्क्वायर लिया एक्स का, तो हमने लिया 1 4 9 16 25, ये वैल्यूज़ हमने ले ली। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यूज़ हैं और उतनी ही वैल्यू हमारी वाई एक्सिस के अलोंग 5 5 वैल्यूज़ हैं। और इन पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन चार्ट ड्रॉ होने जा रहा है हमारा। तो अभी हमको अगर लाइन चार्ट ड्रॉ करना है तो सिंपल लाइन चार्ट ड्रॉ करते हैं। लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है एक फंक्शन की जिसका नाम है प्लॉट, जिसके थ्रू लाइन चार्ट को ड्रॉ किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे पी एल टी डॉट प्लॉट। पी एल टी क्यों? क्योंकि पी एल टी रिप्रेजेंट कर रहा है मैटप्लोट्लिब डॉट पाई प्लॉट को, और प्लॉट है फंक्शन का नेम, और जिसके बीच में हमें लाइन चार्ट ड्रॉ करनी है वो है एक्स और वाई। तो हम लिखेंगे प्लॉट फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर वैल्यू एक्स कॉमा वाई, बाकी सब हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक फंक्शन पी एल टी डॉट शो है, जब तक आप इसे लिखेंगे नहीं लाइन चार्ट ड्रॉ नहीं होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत छोटा प्रोग्राम बना दिया मैंने लाइन चार्ट ड्रॉ करने का विद मिनिमम पैरामीटर वैल्यू। इसको पहले रन कराते हैं। देखिए मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर देता हूँ, आपको थोड़ा क्लियरली दिखाई देगा। तो एक प्रोग्राम है, लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यूज ली, 5 वैल्यूज ली इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट। वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू ली, 5 वैल्यूज ली, क्योंकि जितनी एक्स एक्सिस वैल्यू होनी चाहिए उतनी वाई एक्सिस की वैल्यू होनी चाहिए। फंक्शन यूज़ किया प्लॉट, जो मैटप्लोट्लिब का फंक्शन है, तो हम लिखेंगे पी एल टी डॉट प्लॉट। पी एल टी है मैटप्लोट्लिब डॉट पाई प्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स और वाई के बीच में हमको ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो हम एक्स और वाई को एज ए पैरामीटर वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, एक्स को वाई। ठीक है, और लास्ट में फाइनली हमको शो करना होता है स्क्रीन पर आउटपुट को, तो हम लिखेंगे पी एल टी डॉट शो। यहाँ से चलिए इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और देखते हैं रन होता है क्या होता है। ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है, तो पहले सिंपल एक प्रोग्राम बना लेते हैं, इसको रन कराते हैं। देखिए ये ग्राफ प्लॉट हो गया, ब्लू कलर की लाइन आ रही है, क्लियर है। तो ये ब्लू कलर की लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि डिफ़ॉल्ट कलर जो होता है ना वो ब्लू होता है इसका। अगर आप कोई कलर मेंशन नहीं करें, हमने किया भी नहीं है मेंशन कोई कलर, तो डिफ़ॉल्ट कलर जो होता है ब्लू होता है। तो इस वजह से ये लाइन ब्लू कलर की शो हो रही है। एक मिनट जी, वेट ए सेकेंड। ओके, तो ये लाइन चार्ट ड्रॉ हो रहा है जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ब्लू कलर की एक लाइन शो हो रही है, क्लियर। मैं थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ, ड्रैग कर देते हैं इसको, अब दिखाई दे रहा होगा आपको क्लियरली। ये ब्लू कलर की लाइन है। तो हमने एक सिंपल लाइन चार्ट ड्रॉ किया इसमें,
एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल प्रोग्राम था लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए। अभी आपको उम्मीद है ये समझ में आ चुका होगा। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज करके इसको बताएंगे कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को या पैरामीटर्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है इसमें। तो पहले तो हम एक काम करते हैं कि हम एक लाइब्रेरी और इंपोर्ट करते हैं, numpy। इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत ये है कि ये numpy जो लाइब्रेरी है, ये बेसिकली हमें हेल्प करती है मैथमेटिकल जितने फंक्शंस होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में। जैसे log x निकालना है, sin x निकालना है, cos x निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अगर प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है तो आप उसके थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे मैं y की वैल्यू एक लिस्ट की फॉर्म में नहीं देना चाह रहा, मैं यहाँ पर देना चाह रहा हूँ y की वैल्यू सपोज log x की फॉर्म है, तो मैं लिखूंगा np डॉट लॉग एक्स। तो x की जितनी वैल्यूज 1 2 3 4 5 सबका log निकलेगा, और log निकलने के बाद ये जो वैल्यूज होंगी 5 वैल्यूज होंगी, ये y को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। log x हम कैसे कैलकुलेट करें? क्योंकि हमने numpy को इंपोर्ट किया इसलिए हमने लिखा np डॉट लॉग एक्स, ठीक है। तो ये भी करके देखते हैं। अब प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो अब जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो x और log x के बीच में ड्रॉ होगा। ये देखिए रन किया है मैंने, ये देखिए एक्स और log x के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ हुआ है। तो log x को कैलकुलेट करने के लिए numpy लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए numpy को हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट किया। तो एक ये हो गया पॉइंट, क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। आउटपुट देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो ये x की वैल्यू थी 1 2 3 4 5। अभी ये ज़रूरी नहीं आप x की वैल्यू लिस्ट की फॉर्म में दें, इसके लिए भी हम कोई numpy का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। एक numpy का फंक्शन आता है अरेंज फंक्शन, ठीक है। उसकी हेल्प से आप ये कर सकते हैं। तो अरेंज फंक्शन लिया, अरेंज फंक्शन में आप जो पैरामीटर वैल्यू पास करते हैं वो स्टार्ट वैल्यू, एंड वैल्यू और इंक्रीमेंट, यानी 0 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा और 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो 0 वैल्यू होगी, फिर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 7 8 9 इस तरीके से वैल्यू होगी। 10 इंक्लूड नहीं होता, 10 एक्सक्लूड होता है, मतलब लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड होती है। तो ये करते हैं, अरेंज में स्पेलिंग गलत है थोड़ी सी, ARANGE होता है। आप ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो अभी हमारे पास 10 डिफरेंट वैल्यूज़ हो गई एक्स की। फ़ायदा ये हो, एडवांटेज ये मिला हमको इसको कि हमको लिस्ट की फॉर्म में 10 डिफरेंट वैल्यू पास नहीं करनी पड़ी। हमने एक फंक्शन यूज़ किया और हमें 10 डिफरेंट वैल्यू मिल गई। अब ये तो 10 है, अगर 100 भी अगर हम करना चाहें तो हमें लिखना पड़ता 0 टू 0 100 1, तो 100 वैल्यू मिल जाती। तो 100 वैल्यू लिखना एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, तो उससे बचने के लिए बड़ा आसान है कि हम लिखें इसको इस तरीके से। तो चलिए इसको भी रन करा के देखते हैं। तो होना कुछ नहीं है इसके अंदर, बस ये है कि इस बार भी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ही ग्राफ ड्रॉ होगा, यानी एक्स और लॉग एक्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ होगा, लेकिन वैल्यू पिछली बार से हमें ज़्यादा मिल जाएंगी। पिछली बार सिर्फ 5 वैल्यूज थी, इस बार 10 वैल्यू मिल जाएंगी। तो 10 वैल्यू एक्स की हो जाएंगी, 10 वैल्यू वाई की हो जाएंगी, यानी टोटल 10 पेयर्स मिलेंगे, हमें पॉइंट्स मिलेंगे जो जिनको ऐड करते हुए, जिनको कनेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ होगी। चलिए देखते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी हम अरेंज फंक्शन यूज़ करते हैं तो स्टार्ट वैल्यू तो इंक्लूड होती है, और जो स्टॉप वैल्यू होती है, सेकंड वैल्यू जो होती है, वो एक्सक्लूड होती है, वो पार्ट नहीं होती। तो अगर मैं 0, 10 लिख रहा हूँ तो 0 इंक्लूड होगी, 10 एक्सक्लूड होगी, और कॉमा करके थर्ड जो वैल्यू होती है वो स्टेप वैल्यू होती है, कितने का इंक्रीमेंट होगा। 0 से जब 10 की तरफ मूव करेंगे तो इंक्रीमेंट कितने का होगा। तो 1 का इंक्रीमेंट है यहाँ पर, तो पहली वैल्यू 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन अप टू सो ऑन, लास्ट वैल्यू 9 हो जाएगी। 10 नहीं होगी, 10 एक्सक्लूड होगी। ये देखिए रन कराते हैं प्रोग्राम को। अब देखिए अभी एक ग्राफ आपको दिखाई दिया, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम स्टेप वैल्यू को कुछ और लेना चाहें 0.1, तो अब एक्चुअली 100 वैल्यू मिल जाएंगी एक्स की हमें, क्योंकि अब इंक्रीमेंट 0.1 का है। 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.4, 0.5 इस तरीके से। ये देखिए मैं यहाँ 0.1 कर दे रहा हूँ, और उतनी वैल्यू वाई की मिलेंगी। तो देखिए ग्राफ देखिए, अब ग्राफ आपको जो कर्व है वो थोड़ा स्मूथ दिखाई दे रहा होगा, या लाइन चार्ट स्मूथ दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए क्योंकि वैल्यू बहुत एक दूसरे का क्लोज है, ठीक है। क्लोज है इसलिए कर्व की फॉर्म में दिखाई दे रहा है लाइन चार्ट ही है।
तो पॉइंट जितने पास होते हैं ना उतना स्मूथली ड्रॉ होता है लाइन चार्ट। और अगर हम सिर्फ ऐसा करें कि ना तो हम इंक्रीमेंट वैल्यू दें ना ही हम स्टार्ट वैल्यू दें, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट वैल्यू 0 होती है और बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट जो होता है या स्टेप वैल्यू जो होती है वो 1 की होती है, 1 होता है आपका। तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अभी भी 10 वैल्यूज़ रिप्रेजेंट होंगी, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसीडर होंगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टार्ट वैल्यू 0 और स्टेप वैल्यू 1 होगी। ये देखिए रन कराते हैं, ये देखिए क्लियर। तो ये आपकी चॉइस है, आप देना चाहे स्टार्ट वैल्यू दे सकते हैं। अभी मैं दोबारा से लिख देता हूँ 0,10,0.1, ठीक है। 100 वैल्यूज़ है हमारी एक्स की, और उसके अलावा जब हम लॉग एक्स निकालते हैं तो ऑब्वियसली 100 वैल्यू हमें वाई की भी मिलेंगी। अब बात करते हैं कुछ और पैरामीटर वैल्यूज़ की। कलर की बात करते हैं। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप लिखेंगे, एक पैरामीटर नाम है कलर, COLOR, उसकी वैल्यू देंगे। अब आप वैल्यू दे सकते हैं कैरेक्टर की फॉर्म में या एक स्ट्रिंग की फॉर्म में। कैरेक्टर की फॉर्म में दिया वाई, तो वाई रिप्रेजेंट करेगा येलो कलर को, ठीक है। आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, देखते चलिए। ये देखिए यहाँ हमने इसको लिख दिया, ठीक है। रन कराते हैं, येलो कलर की लाइन ड्रॉ होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। कुछ एरर शो कर रहा है, आई थिंक एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। आप एरर आएगी तो देखिए वो मार्क का साइन बना हुआ आ रहा है, वो दिखा रहा है कि एरर है, अभी क्लियर नहीं हुई। तो ये अच्छी बात है। आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हो तो देख लीजिएगा एरर कैसे रिमूव करते हैं। ये देखिए येलो कलर की एक लाइन ड्रॉ हो गई आपकी, क्लियर। और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, अगर येलो वाई ना लिखे कलर ही कलर का नेम ही लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं येलो लिखें या मैं चलिए रेड लिख देते हैं। रेड पे देखिए ये रेड कलर की लाइन ड्रॉ हो गई, क्लियर। तो आप कलर का नेम लिख दीजिए या फिर जो करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है उस कलर को, उसका नेम लिख दीजिए। तो दोनों ही केसेस में होगा ये कि लाइन तो ड्रॉ हो ही जाएगी। और क्या कर सकते हैं, कलर की बात होगी। लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड होती है। सॉलिड का मतलब कोई पॉइंट्स जो होंगे ना उसमें कोई गैप नहीं होगा। लाइन तो बाय डिफ़ॉल्ट तो सॉलिड ही होती है, आप नहीं भी लिखेंगे तो सॉलिड लाइन ड्रॉ होगी। और आप चेंज करना चाहते हैं डैश डॉटेड, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। यहाँ पर हम सॉलिड तो है ही, तो हम क्या काम करते हैं, सॉलिड को हटा के दूसरी लेते हैं ताकि हमें पता चले कि और कौन कौन सी लाइन स्टाइल होती है। तो हमने लिख दिया डेस्ट, DASHED, डेस्ट, लाइन स्टाइल डेस्ट है। सॉलिड लिखेंगे वो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो सॉलिड होता ही है। सॉलिड तो रिप्रेजेंट हो ही रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने सॉलिड लिखा नहीं है। लिखेंगे तो अच्छी बात है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोग्राम पर। तो हमने चेंज किया लाइन स्टाइल को, लाइन स्टाइल लिखा मैंने डेस्ट। और ये देखिए ओके कुछ एरर है, अब ठीक हो जाएगा। देखिए तो डेस्ट की फॉर्म में आई लाइन, पहले सॉलिड थी अब डेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है। कलर ग्रीन ले लेते तो थोड़ा और क्लियर दिखाई देगा, अब आपको आई थिंक और ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो लाइन स्टाइल चेंज करने का ये एडवांटेज होता है, लाइन स्टाइल को चेंज कर दिया, सॉलिड से डेस्ट कर दिया हमने। एक और एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट का नाम है मार्कर। तो जो मार्कर स्टाइल है जिससे रिप्रेजेंट हो रहा है पॉइंट, उसको हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ मार्कर। तो एक उनमें से बाय डिफ़ॉल्ट तो डॉट होता है, लेकिन डी रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायमंड को। लेस देन ग्रेटर देन का भी साइन होता है, एरो का भी साइन होता है, तो उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैंने लेस देन का साइन लिया, अब देखिए क्या होता है कि इसको बस प्रोग्राम में ऐड कर देते हैं, बाकी प्रोग्राम सेम है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, हम एक एक पैरामीटर को ऐड करते जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है प्रोग्राम पर हमारे। तो आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी लाइन चार्ट को। ये देखिए अभी भी एरर है, एरर बार बार ये आ रही है। ये एक्चुअली ये ब्रैकेट की आ रही है, एक वेक्टर एक्स्ट्रा था और एक सिंगल कोटेशन की एरर है। ये देखिए हो गया ठीक। तो एरो की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इसको आप और भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका रिवर्स साइन किया तो ये देखिए
ठीक है। ओ लेते हैं तो सर्कल रिप्रेजेंट होगा, ये देखिए। अब पॉइंट बहुत क्लोज है ना, तो आपको उतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अगर आप पॉइंट डिफरेंस ज़्यादा रखेंगे, डिफरेंस जो डिस्टेंस है, जो इंक्रीमेंट है वो 0.1 का है, इसलिए पॉइंट बहुत एक दूसरे क्लोज दिखाई दे रहे हैं। डॉट लिया तो ये देखिए डॉट के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के मार्कर हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत चॉइस है। प्लस लिया, प्लस भी ले सकते हैं, स्टार ले सकते हैं, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन का साइन ले सकते हैं, तो ये सभी हैं। डायमंड ले सकते हैं, डायमंड डी को रिप्रेजेंट, डी से डायमंड रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल डी से, ये देखिए। तो ये हो गया आपका। तो आपने अभी मार्कर का देख लिया। अभी ये जो मार्कर का साइज़ है ना, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो हमें एक एट्रीब्यूट और यूज़ करना पड़ेगा, एक पैरामीटर वैल्यू और ऐड करनी पड़ेगी। पैरामीटर ऐड किया हमने मार्कर साइज़, मार्कर साइज़ ले लिया 8 ना लेके इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, और दिखाई देगा आपको। 8 ही लेते चलिए, और फिर प्रोग्राम के अंदर इंक्रीज़ करेंगे इसको, तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि मार्कर साइज़ बढ़ाने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्रोग्राम पर। तो अभी 8 ले लिया हमने, अब देखते हैं। ये देखिए साइज़ बढ़ गया आपका। 8 की जगह मैं 16 कर दे रहा हूँ, जस्ट डबल, तो और पता चलेगा आपको। ये देखिए, ठीक। तो मार्कर का साइज हम बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। 4 ले लिया, अब देखिए, तो ये 4 हो गया, तो एक एक्टिविटी हो गया। तो एक तो एक्टिविटी हो गया। अच्छा, एक एट्रीब्यूट और बचा आपका, मार्कर एज कलर। तो जो मार्कर है ना, उसका, उसकी बाउंड्री का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, यानी उसका एज कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए एट्रीब्यूट का नेम है या पैरामीटर का नेम है मार्कर एज कलर, और वैल्यू दी है हमने, कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी कलर नेम। मान लीजिए हमने रेड दे दिया तो रेड कलर की हो जाएगी। और हम कैरेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कलर का फुल नेम दें हम। तो इसको भी करके देखते हैं प्रोग्राम के अंदर। ये देखिए, इसको नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी मार्कर एज कलर रेड हो जाएगा। ठीक, अब रन हो जाएगा प्रोग्राम सक्सेसफुली, देखिए। कलर येलो लेते हैं, येलो पर रेड थोड़ा सा क्लियरली दिखाई देगा, इसलिए मैंने येलो लिया है आपको। ये देखिए, तो कलर है आपका येलो, और मार्कर का एज का कलर है आपका रेड था। ग्रीन करके देखिए तो देखिए ग्रीन आ जाएगा, ये देखिए दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक अब क्लियर आपको। येलो पर ग्रीन, मार्कर का एज कलर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स थे या पैरामीटर्स थे, पैरामीटर वैल्यूज़ को हमने, डिफरेंट पैरामीटर वैल्यूज़ को यूज़ किया इसके। अभी ये जो एक्स लेवल है, वाई लेवल है, टाइटल है, आप पहले से अच्छी तरीके से जानते हैं। एक्स एक्सिस का नेम देना चाहें तो एक्स लेवल, वाई लेवल का नेम देना चाहें तो वाई लेवल, वाई एक्सिस का नेम देना चाहें वाई लेवल, और प्रोग्राम का टाइटल बनाना चाहे तो टाइटल। अभी नहीं यूज़ करेंगे तो एक्स एक्सिस का कोई नेम नहीं होगा, वाई एक्सिस का कोई नेम नहीं होगा, टाइटल भी नहीं आएगा। लेकिन अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो इन तीनों को यूज़ कर लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सभी को एक साथ यूज़ करें, लेकिन जनरली होता है कि एक्स एक्सिस का नेम देते हैं तो वाई एक्सिस का भी नेम देते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम है एक्स लेवल, वाई लेवल और टाइटल, ये देखिए यूज़ करते हैं। देखते हैं प्रोग्राम में। अभी एक्स एक्सिस का कोई नेम नहीं, लेकिन ये ऐड करने के बाद एक्स एक्सिस का नेम भी आ जाएगा, वाई का भी नेम आ जाएगा, और टाइटल भी आ जाएगा। ये देखिए, आई एम एक्स लिखा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, आई एम वाई लिखा है अलॉन्ग वाई एक्सिस, और विद लेवल लिखा है अलॉन्ग वाई लेवल। इसका टाइटल हो जाएगा चार्ट का, ठीक है। तो ये फंक्शन भी थे। तो अभी ये प्रोग्राम हो गया आपका। अभी ये मैंने आपको बता दिया लाइन चार्ट किस तरह से ड्रॉ होता है। अब हम अपने मेन प्रोग्राम पर आते हैं, जो साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया था। तो अभी देखिए, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं।
अभी इस प्रोग्राम में दोनों लाइन साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के लिए लाइन चार्ट ड्रॉ हुआ है एक ही प्रोग्राम के अंदर, लेकिन हम पहले 1 बाई 1 करते हैं। तो साइन एक्स के लिए ड्रॉ करते हैं पहले। तो एक वैल्यू है एक्स और एक वैल्यू है वाई। वाई की डेफिनेशन दी मैंने एन पी डॉट कॉस एक्स। कॉस एक्स के लिए ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। कॉस एक्स के लिए ड्रॉ करते हैं और हमने लिखा पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई वन। कलर ले लिया ग्रीन, लाइन स्टाइल सॉलिड, मार्कर टाइप डी, मार्कर साइज 8, मार्कर एज कलर रेड। ये देखिए ड्रॉ हो गया। बाकी तो सब सेम ही है जो अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले। बस जो डेफिनेशन है वो है वाई वन एन पी इक्वल टू एन पी डॉट कॉस एक्स, ठीक है। इसी में अगर हम साइन एक्स के लिए ड्रॉ करना चाहें तो कॉस एक्स की जगह साइन एक्स कर देंगे तो साइन एक्स के लिए ड्रॉ हो जाएगा, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं कॉस एक्स की जगह साइन एक्स कर देता हूँ। अभी कॉस एक्स के लिए ड्रॉ हो रहा है, अभी साइन एक्स के लिए ड्रॉ हो जाएगा। ये देखिए डिफरेंस देखिएगा दोनों में, कर्व में। ये देखिए अब ये साइन एक्स के लिए ड्रॉ हो गया, ठीक है। एम की स्टाइल में ड्रॉ हुआ है, कुछ इस तरीके से लग रहा हो। अगर हम एक ही प्रोग्राम के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स दोनों को ड्रॉ करना चाहें तो हम दो वेरिएबल लेंगे वाई वन और वाई टू। पहला ड्रॉ करेंगे एक्स और वाई वन के बीच में, दूसरा अगर चार्ट ड्रॉ करेंगे एक्स और वाई टू के बीच में, और हम उसका कलर लाइन स्टाइल ये सब चेंज कर लेंगे ताकि दोनों ग्राफ अलग से आसानी से पहचाने जा सके। देखिए मार्कर टाइप पहले में डी था, दूसरे में प्लस है। मार्कर साइज पहले में 8 था और मार्कर एज कलर रेड था, दूसरे में मार्कर साइज 7 है और मार्कर एज कलर ब्लैक है। तो एक ही प्रोग्राम के अंदर हम साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये किया मैंने कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट। तो ये देखिए ये ड्रॉ हो गया साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का एक ही चार्ट। तो ये थी हमारी आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो स्कैटर चार्ट और बॉक्स प्लॉट को हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।